ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 6 ਹੈ, ਔਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਈਵਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਔਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਵਨ ਔਡ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 3 5 2n-1 ਸਿਗਮਾ 2n। ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਈ ਦੀ TX ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, μ t ਪਲੱਸ 1/2 ਸਿਗਮਾ ਸਕੇਅਰ ਟੀ ਸਕੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। x ਮਾਈਨਸ μ t, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, e ਦੀ ਮਾਈਨਸ μ t ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਬਸ, ਮੀਨ t ਨਾਲ, μ ਮੀਨ ਆ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ mx t ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। e ਦੀ ਮਾਈਨਸ μ t ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ e ਦੀ μ t 1/2 ਸਿਗਮਾ ਸਕੇਅਰ ਟੀ ਸਕੇਅਰ, μ t ਨਾਲ μ t ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਕਿ e ਦੀ 1/2 ਸਿਗਮਾ ਸਕੇਅਰ ਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਸੀਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਕੀ ਆਊਗੀ 1, ਫਿਰ 1/t ਸਿਗਮਾ ਸਕੇਅਰ ਟੀ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਓਵਰ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਿਰ 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਟੀ ਸਕੇਅਰ T4 T6 ਔਡ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ μ r ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ μ r ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਰਥ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਟੀ ਦੀ r/r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ। μ1 ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਟੀ ਦੀ 1/1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਟੀ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ 3 ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ, μ3 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਟੀ ਦੀ ਕਿਊਬ ਬਾਏ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਪਰ ਟੀ ਦੀ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, μ5 ਟੀ ਦੀ 5 ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ μ2n+1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਔਡ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ 0 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਕੱਢੀਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆਫ μ2n ਈਵਨ ਕਿਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਟੀ ਦੀ 2n/2n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਟੀ ਦੀ 4 ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹੀ x ਪਈ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ n, ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ n, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟੀ ਦੀ 2n, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਟੀ ਦੀ 2n। ਸੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਟੀ ਦੀ 2n ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਫ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰੋ, ਟੀ ਦੀ 2n ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ 1/n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਸਿਗਮਾ ਦੀ 2n, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 2n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੀ ਦੀ 2n ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਟੀ ਦੀ 2n ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 1/2 ਦੀ n
होर की है सिग्मा 2 दी n, होर कुछ है ये कुछ नहीं है। ठीक है, इनू हुण सिंपलीफाई करो। देखो 2 दी n नू खोल लो, की आऊगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन 4 3 2 1। तो n फैक्टोरीयल आ जिहड़ा इनू पिया रहन दो, 2n ओवर n फैक्टोरीयल नू उवें पिया रहन दो, सिग्मा दी 2n आ जिहड़ा इनू भी उवें पिया रहन दो। इहदे चों 2 आया, इहदे च भी आया, इहदे च भी आया, इहदे च भी आया, कितनी बार आया होगा 2? आए करो, मेरी गल सुनो, इहदे चों ईवन वाला अड्ड कढ लो, ऑड वाला अड्ड कढ लो। देखो की आऊगा 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1, इत्थों तक आऊ ना 1 3 5 2n माइनस, ऑड वाला ईवन वाला अड्ड कढ लो 2 4 6 आऊगा, अप टू सो ऑन आऊगा कित्थों तक 2n तक, सिग्मा 2n मूरे आ गया 2 दी n ओवर n फैक्टोरीयल। हुण राजे इहदे च जे मैं सिग्मा 2n ला लिया 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 ला लिया है ना, इहदे च इनू मैं लिख सकदा 2.1 ते 4 नू लिख सकदा 2.2 ते 6 नू 2.3, लास्ट वाले नू 2.n। देखो कितनी बार आया होगा ये 2, जे देखा जाए एक बारी आ गया, इतने 2 बारी आ गया, इतने 3 बारी आ गया, इतने n बारी आ गया, सो 2 दी पावर n बाहर कट लिया मैं। ठीक है, पिछे की रह गया 1 2 3 अप टू सो ऑन n है ना। आ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਲਾ पोर्शन है इनू उमें ला दो, डिटो। नीचे की रह गया 2 दी n ओवर n फैक्टोरीयल। देखो 2 दी n ना गया, ये जे गौर ना देखो ये n फैक्टोरीयल ही है, ये ना गया, देखो बच गया अपना आंसर। ठीक है, सो ये ईवन ते ऑड मूवमेंट्स इदा कैलकुलेट हो जानी है। चलो अगे चलीए, ਹੁਣ मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन राजे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ आ ਕੁਰਤੋਸਿਸ वगैरह ये ईवन ਤੇ ऑड मूवमेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕੁਰਤੋਸਿਸ वगैरह आप ਕੱਢ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 7 'ਚ ਪਹਿਲੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨ ਮੀਨ ਐਂਡ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ कोई डिफिकल्ट जहा क्वेश्चन देखिए, हाँ 13वां क्वेश्चन वधिया, 14वां वधिया, 13वां 14वां 15वां, एक मिनट 10वां भी देख ही लीए। 10वें च की है राजे, एक ना इन्होंने क्वेश्चन दिता होया 8वां, 10वें ने छड्डो, पहला 8वां देखो, पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन किवें देखीदा। पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन राजे पहला तो डबल डेरीवेटिव कैलकुलेट करीदा। ठीक है, जे एक्स पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन आ तो यह होगा 0। ठीक है, एक्स आ जिहड़ा, एक मिनट यार, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, डबल डेरीवेटिव 0 होगा तो ट्रिपल डेरीवेटिव आ जिहड़ा नॉन जीरो होगा, दैन एक्स आ जिहड़ा वो पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन होंदा। ठीक है, ये चीज़ याद रखियो। हुण जदों ये कहंदे आ, ये कहंदे एक्स आ जिहड़ा 8वें क्वेश्चन च नॉर्मल वेरीएट आ, तो कहंदा प्रूव दैट, टू प्रूव एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा ते एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा आर पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन। ਇਹਦਾ मतलब की है, जिमें ਆਪਾਂ सब तो पहला पहला डेरीवेटिव कैलकुलेट करांगे। एफ एक्स लिख ली, एफ एक्स की आऊगा, मैं ना इत्थे कैलकुलेट करके रख लिया, मैं तुहानूं ना सीधा ही वैल्यू भरूंगा। ठीक है, फस्ट डेरीवेटिव दी ते डबल डेरीवेटिव दी। डबल डेरीवेटिव कैलकुलेट करन तो बाद पता किहो जाऊगा। हुण देखो इहदा डेरीवेटिव आपां मॉड कैलकुलेट करन टाइम कीता सी, किवें कीता तुहानूं याद आ, किवें कीता सी, डबल डेरीवेटिव भी कीता सी, सिंगल डेरीवेटिव भी कीता सी, लॉग लैके कीता सी। डबल डेरीवेटिव कैलकुलेट कर लिया, ये आया मेरे कोले -1/2। देखो पता की है, पहला इहदा सिंगल डेरीवेटिव किया जाता, क्योंकि आपां किहड़ा इहनूं जीरो करना वा,
सिंगल डेरीवेटिव इहदा ये आ गया ना। फिर इहदा जो डबल डेरीवेटिव मैं किया मेरे को ये आ गया -1/σ² x माइनस म्यू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये आ गया डबल डेरीवेटिव। इत्थे एफ डैश एक्स की वैल्यू भर दई दी है। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਊ ਹੀ ਭਰਤਾ ਸੀ, ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ठीक है, ये ध्यान रखियो, डबल च पुट करनी है डबल नूं 0 के बराबर रखना, ये पुट करना। तां करके इत्थे इहनूं मैं 0 के बराबर नहीं करना। अगे तो इहनूं 0 के बराबर किया, एक्स की वैल्यू म्यू आ गई, ये भरती सी, सीधा ही मिनट च दी हो गया क्वेश्चन। पर यह इन्नी छेती नहीं होना, ये वैल्यू सिंपलीफाई एफ एक्स तक लैके जानी आपां। सो ये वैल्यू चक के मैं भरती ये की आया -x माइनस म्यू एफ एक्स σ² प्लस एफ एक्स है ना। मेरे को सिंपलीफाई करने तो बाद ये चीज़ बनी आ -1/σ² 1 माइनस x माइनस म्यू द स्केयर σ² एफ एक्स। हुण एक चीज़ देखो, जदों इनू 0 के बराबर रखा, एफ एक्स तो नॉन जीरो आ, ये भी नॉन जीरो आ। एक्स दी वैल्यू ना इत्थे 2 आ गई, इनू एलसीएम लैके जो सॉल्व किया आ गया σ² माइनस x माइनस म्यू द स्केयर इज इक्वल टू 0। ये तो इनू ऐ कर सकते ए माइनस बी वाला फार्मूला लाता, ए प्लस बी ए माइनस बी। इतों एक्स दी 2 वैल्यू आ गई, एक इस पोर्शन तो आ गई एक्स म्यू, किते कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इनू सॉल्व कर लो, इनू उधर ले गया एक्स, ये इतों आ गई एक्स म्यू प्लस सिग्मा, इतों आ गई एक्स म्यू माइनस सिग्मा, 2 वैल्यू आ गई। यानी कि ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन हो सकते हैं, पर हुण ट्रिपल डेरीवेटिव कढ़ के वो पुट करनी है। राजे ट्रिपल डेरीवेटिव मेरे अनुसार कढ़ना कढ़ लियो, नहीं कढ़ना ना कढ़ियो, ठीक है। जदों आप मॉड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ट्रिपल डेरीवेटिव बहुत लेंथी हो जाना, जदों तक राजे देखो मॉड कैलकुलेट करते हैं, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ देखना ਹੁੰਦਾ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਖਾ। वैसे ਇਹਦਾ एक होर डेरीवेटिव कर सकते हो, पुट करके ਉਹਦਾ ट्रिपल डेरीवेटिव करने, ट्रिपल डेरीवेटिव पुट करोगे ना ਜਦੋਂ नॉन जीरो आ जाऊगा ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ये पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन हो गए। ਹੁਣ ट्रिपल डेरीवेटिव आपे कर लो, ठीक है। जे बाई चांस ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ लगता, ठीक है, भावें ना कढ़ियो, सीधा ही लिख दो। कई किताबां 'ਚ ना लिख दिंदे आ, वन कैन ईजिली चैक। वैसे ये ऑड जा लगता कि चैकर क्यों चैक करूँगा, पर मेरे अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाना ट्रिपल डेरीवेटिव, ठीक है। सो इत्थे लिख दिओ फिर। अच्छा, अगे क्वेश्चन हुण आप 8वां हो गया। 10वां राजे जिहड़ा ना 10वां एवें ही है क्वेश्चन, वो तुहानूं भुलेखा पाउण लई इहने बनाया थोड़ा जिहा। आ जिहड़ा 100 लिखिया होया 100 अडल्ट्स एंड ते आ देखो आ कुछ नहीं गा राजे, की करना आपां, अपने कोले मीन आ गया, अपने कोले स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, आपां 10 तो 14 की प्रोबेबिलिटी नहीं कढ़ सकते। एवें बस ये डराउंदे आ बंदा ना, ऐ जो 100 अडल्ट्स देखदा उहनूं उहदा ध्यान जांदा, यार ये तां बाइनोमियल आ गई, म्यू 8 देता, सिग्मा 5 देता स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये कह रहा 10 तो 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ Z ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 10 ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਬਾਏ ਸਿਗਮਾ, ਇੱਥੇ Z ਬਣ ਜਾਊਗਾ 14 ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਬਾਏ ਸਿਗਮਾ, ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ ਸਿਗਮਾ ਮਿਊ, 10 ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਕੀ ਹੈ 8, ਸਿਗਮਾ ਕੀ ਹੈ 5, Z 14 माइनस 8 बटा 5, ये नंबर बन जू, ये भी कोई नंबर बन जूगा। ये एग्जाम्पल मैं करवाई है जी, डिटो आ एग्जाम्पल देखो, आ 70 तो 100 वाली कढ़ी नहीं, सेम है, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन च, ਐਵੇਂ बस ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। एक मिनट, 13वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बाबा ये औखे भी हैगे आ, मैं ज़्यादा करवाई भी जाना, आ लाइब्रेरी जी वाला तंग करूँगा थोनों, पर मैं थोड़े ते ही छड्डूंगा,
क्योंकि मेरी गल सुनो, ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बाइनोमियल ने यदा एक्यूरेट आंसर देना सीगा पर नॉर्मल ने एक्यूरेट आंसर नहीं देना, पर फिर भी नॉर्मल ही लाउनी आ। ठीक है, तो ये मेरी गल सुनो यार, चलो थोड़ा मैं हिंट दिना ਇਹਦਾ। ठीक है, 16वां नहीं, ये किहड़ा 11वां, लै दिमाग घूमिया पिया मेरा, 4 लैक्चर लाते अज मैं छुट्टी जी। There are 600 mathematics students in the graduate classes of university and the probability मतलब 600 स्टूडेंट कह रहे हो है ना, यानी कि कुल स्टूडेंट्स की गिनती कितनी होगी 600, यानी कि शुरू हो बाइनोमियल, इन्हें लिख भी दिता ना, कोई चलाकी भी नहीं कर रहा हो, n 600 हो गए। There are 600 mathematics students in the graduate classes of university and the probability for any student to need a copy of particular book from the university library on any day is 0.5। मतलब एक बुक मिलने की probability अपने को की है 0.05। ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 1 बुक मिलने की, रफ काम मान लो ਇਹਨੂੰ, 1 बुक मिलने की probability to get 1 book 0.5 है probability, ये रख लेने। How many copies of the book should be kept in the university library so that the probability may be greater than 0.90। मतलब probability अच्छा कादी, that none of the students needing a copy from the library has to come back disappointed। अच्छा मतलब कोई भी स्टूडेंट है जिहड़ा वो निराश होकर वापस ना आवे, किन्नियां कापियां लाइब्रेरी विच चाहीदियां। अच्छा हुण इहदे बारे थोड़ा जिहा सोचना पऊगा, इहने घुमाता क्वेश्चन। हाउ मैनी कॉपीज़ ऑफ द बुक। अच्छा सक्सैस किहनूं मन्नी है पहलां तां, मतलब बच्चा वापस ना मुड़े निराश होकर, उन्होंने सक्सैस मिले, सक्सैस मतलब किताब का मिलना सक्सैस आ। सो ये प्रोबेबिलिटी पी होगी जी सक्सैस की होगी। हुण लाइब्रेरी च किन्नियां कम से कम किताबां होण, कम से कम नहीं गया इन्हें, कम से कम नहीं क्या इन्हें। सो इत्थे देखो राजे, एक सीधी जी गल करो, जे उत्थे रिक्वायरमेंट आपां अगे भी इहो जिहा क्वेश्चन कीता घट होवे, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होवे है ना, फिर आपां कह सकते हैं भी बच्चा खुश होऊगा। ये है स्टूडेंट दे हैप्पीनैस की प्रोबेबिलिटी। रिक्वायरमेंट घट सीगी, अवेलेबिलिटी ज़्यादा सीगी, सो इसदा मतलब बच्चा खुश आ। आपां अगे भी कीता सीगा आइसक्रीम वाला, उत्थे गाहक आ जिहड़ा वो निराश होना सीगा, याद आ। उदों फिर आपां रिक्वायरमेंट ज़्यादा करती सीगी, अवेलेबिलिटी घटाती सीगी। हुण अवेलेबिलिटी ज़्यादा होवे, रिक्वायरमेंट घट होवे, ये खुशी की प्रोबेबिलिटी है, बच्चा खुश होऊगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 0.90। सो एक चीज़ है इत्थे, रिक्वायरमेंट है जिहड़ी मतलब रिक्वायरमेंट की है, कौन एक्स की है, नंबर ऑफ कॉपीज़ जे देखा जाए सक्सैस है ना, एक्स सक्सैस नूं रिप्रजेंट करदा, मतलब एक्स नंबर ऑफ सक्सैस। सो एक्स नूं आपां की लिख सकते हैं, ਇਹਨੂੰ ध्यान च देख के, सक्सैस नूं ध्यान च देख के एक्स नूं आपां लिख सकते हैं द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द बुक रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट। ठीक है जी, स्टूडेंट नीडिंग ए कॉपी फ्रॉम, देखो ये लास्ट लाइन पढ़ो, नॉन ऑफ द स्टूडेंट नीडिंग अ कॉपी फ्रॉम द लाइब्रेरी हैज़ टू कम बैक डिसपॉइंटेड। मतलब उस हिसाब नाल एक्स है जिहड़ा वो आप मान लीए नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द बुक रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट। एक्स है जिहड़ा ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी हो सकती है कि रिक्वायरमेंट हो सकता उन्होंने 0 कॉपी मिले, हो सकता 1 मिले, हो सकता 2 कॉपियाँ मिलन, हो सकता 3 मिलन, हो सकता 4 मिलन। मतलब 1 कॉपी 1 सक्सैस, 2 कॉपी 2 सक्सैस। टू गैट 1 कॉपी ऑफ बुक चाहिए इत्थे है ना, 1 बुक नहीं चाहिए, टू गैट 1 कॉपी ऑफ बुक। 1 कॉपी मिलनी 1 सक्सैस, 2 कॉपियाँ मिल गई, 3 कॉपियाँ मिल गई, 4 कॉपियाँ मिल गई। तो इन्हों ने की क्या होया, 1 कॉपी फ्रॉम द लाइब्रेरी पट्टी, हाँ ठीक है, हाँ देखो ना, कॉपी ऑफ पर्टिकुलर बुक आ, मतलब बुक्स नहीं है जिमें आह बुक आ तुहाडी प्रोबेबिलिटी की बुक आ, इहदियां कापियां समझ लगी,
एक ही बुक दीयां कापियां ये। सो टू गैट 1 कॉपी ऑफ बुक ये सक्सैस आऊगी। 0 कॉपी भी मिल सकती है। हुण मान लो एवें कोई मूँह चक के जिन्हें कदे भी नहीं पढ़ना हैगा वो 3 कॉपियां लैण आ गया, आपां उहनूं भी नहीं निराश करना। समझ लगी? मतलब हुण एक बारी दोबारा पढ़ो। देयर आर 600 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। चलो the probability for any student to need a copy of particular book from the university library on any days this copy है sorry गलत लिखा गया to get a copy to get 1 copy of particular book is a success है। so ये number of copies आ गया x, ठीक है। एक कॉपी मिल गई एक सक्सैस, तो ये सारिया सक्सैस बारे गल करता, यदा मतलब सारिया कॉपीज़ बारे गल करता। सो किनिया किनिया मिल सकदियाँ, हो सकता उन्हें 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले, n मिले, ठीक है। ये चीज़ आ गई। सो अल्टीमेटली आप बाइनोमियल ते पहुँच गए। तो आप ये गल करो हुण रिक्वायरमेंट नूं कि कौन रिप्रजेंट करता। देखो नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द बुक रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट्स, जिन्नियां रिक्वायरमेंट आ वो x आ, तो अवेलेबिलिटी नूं कोई भी मान लैंदे आप k, ठीक है। ये आ गया 0.90, तो अवेलेबिलिटी k की वैल्यू कढ़ लो, कितनी अवेलेबिलिटी चाहिए है घट तो घट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द बुक रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट, रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट आए लिख लो द स्टूडेंट्स कैन गेट, फिर थोड़ा जिहा फीलिंग जी आऊगी तुहानूं भी ये सक्सैस अचीव करने वाली चीज़ है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सॉरी नंबर ऑफ द कॉपीज़ ऑफ द स्टूडेंट ओए होए द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द बुक द स्टूडेंट्स कैन गेट, मतलब जिन्नियां स्टूडेंट्स नूं मिल सकदियां। सो एक तरीके नाल जिन्नियां कॉपियां स्टूडेंट लै सकदे आ, ते ये आ गई अवेलेबिलिटी। नहीं ये गलत बन गया, रिक्वायरमेंट ही ठीक है, सेंस बदल गई ਉਹਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगना पर सेंस बदल गई। नंबर ऑफ द कॉपीज़ ऑफ द बुक रिक्वायर्ड टू द स्टूडेंट, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट ਨੂੰ रिप्रजेंट करता, ਉਹਦੀ ਹੁਣ हो सकता ਉਹਨੂੰ 0 रिक्वायरमेंट ਹੋਵੇ, 1 रिक्वायरमेंट ਹੋਵੇ, 2 ਹੋਵੇ, 3 ਹੋਵੇ, ठीक है। रिक्वायरमेंट घट गई K ਤੋਂ ਤੇ 0.93, ਇਹ ਸਕਸੈਸ मतलब ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ठीक है। सो ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਆ ਗਈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। NP N ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਮੀਨ NP 600.05 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ? ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, 30 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? NPQ NP ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ 30 ਹੈ ਨਾ। ਕਿਊ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕਿਊ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ 0.95 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, P ਚੋਂ 1 - PQ ਹੁੰਦਾ 0.95, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ? ਕੱਢ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। 28.5 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਗਮਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 5.3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਇਹ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ x - ਮਿਊ ਬਾਈ ਸਿਗਮਾ, k - ਮਿਊ ਬਾਈ ਸਿਗਮਾ 0.93। तो x - ਮਿਊ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ z, ਅਤੇ k - ਮਿਊ ਕੀ ਹੈ 30, ਸਿਗਮਾ ਕੀ ਹੈ 5.3, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.90। ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ k - 30.3, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ 0.90। ਹੁਣ ਚਲੋ ਟੇਬਲ 'ਚ, बस एक ही क्वेश्चन होर कराऊंगा, ਇਹਦਾ मैं आ करवाऊँगा 13वां, बाकी आप कर लियो यार। .90 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 0.90 ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 0.90। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ x ਭਰੋਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਿਲਟੀ ਵੱਡੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ। ਆ ਦੇਖੋ 0.90 ਹੈ ਨਾ FX ਆਊਟਪੁੱਟ, ਅਤੇ x ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਵੀ ਗਾਂਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ k ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। k ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ 36.7 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36.7 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ 37 ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ, ਐਂ ਸਾਈਨ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, 37 ਲਿਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 37 ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 37 ਬੁੱਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਪੀਆਂ
बुक्स नहीं कापियां होनी चाहिए, फिर बच्चा खुश होऊगा भावें वह पढ़े ना पढ़े। लास्ट 13वां क्वेश्चन, ये कहता जिहड़ा मीन डेविएशन आ फ्रॉम मीन, ये हुंदा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये कहता ये अप्रोक्सीमेटली ये बराबर हुंदा। अप्रोक्सीमेट वास्ते ये साइन हुंदा अपने कोले, ये बराबर हुंदा, ये तुहानूं पता ही है की है ना। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट कर दो। पर एक्स आ जिहड़ा जदों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होवे, वैसे नहीं तुसीं ऊई मतलब जिथे मर्जी ये फार्मूला नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते की आऊगा माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी एक्स माइनस म्यू एफ एक्स डी एक्स है ना, की आऊगा ये वैल्यू भर दो माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी एक्स माइनस म्यू ये वैल्यू 1/√2 पाई सिग्मा ई दी -1/2 एक्स माइनस म्यू सिग्मा का स्केयर डी एक्स। ऐ करो एक्स माइनस म्यू है ना जिहड़ा, इनू पुट कर लो कुछ जैड या वाई पुट कर ली, ये की आऊगा फिर सिग्मा वाई, ये की आ जाऊगा 1/√2 पाई सिग्मा, ये की आ जाऊगा -y²/2। तेरा जे डी एक्स बहुत बारी कर लिया आप, सिग्मा डी वाई आता होंगे है ना, इनू ये कट दो, सिग्मा बाहर कढ़ लो, पॉजिटिव होंगे क्योंकि मोड चो बाहर आ जाऊगा, 2 पाई बाहर आ गया, माइनस ये वाई का मोड इत्थे आ जाऊगा, इत्थे EY²/2 आ जाऊगा डी वाई। हुण आए करो ये अंदर ईवन फंक्शन है ना, इत्थे 0 ला के इत्थे 2 ला दो, ठीक है 0 ला के 2 लाती। हुण जदों लाती तो फिर मोड भी हट जाऊगा क्योंकि 0 तो इनफिनिटी तक सारा कुछ ही पॉजिटिव आ, तो फिर वाई भी पॉजिटिव आ जाऊगा, मोड की लोड़ ही नहीं। समझ लगी इस स्टैप की। उस तो बाद ये आ गया 2 ना 2 कैंसल जा कर दो, 2 पाई सिग्मा आ गया, इत्थे आ गया 0 तो इनफिनिटी वाई इहदी y²/2 डी वाई। हुण आए करो y²/2 नूं भी कुछ पुट कर दो जैड, ठीक है जैड पुट करोगे तो 2/dy/2 ये बन जूगा dz, 2 ना 2 कट्टिया गया वाई डी वाई है dz बन गया, ये उपर -0 तो इनफिनिटी, जे वाई 0 तो 0 आऊगा, वाई इनफिनिटी है तो जैड इनफिनिटी आऊगा, ये बन गया ई दी -z dz, तो मूहरे आह जिहड़ा पिया ये उवें पिया रहूगा। हुण इत्थे करदा ये आ गया सिग्मा √2 पाई, ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ही आ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ 1 आंसर आ जाना ਇਹਦਾ, कर लोगे ਤਾਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ 4/5 ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਤੀਰ ਜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਮੋਸਟ 4/5 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, x is a random variable such that मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 14ਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, 15ਵਾਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਬਾਈਵੇਰੀਏਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। 14ਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, 15ਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ।